Assalamu alaikum everyone. Let's start the class. And today we are going to discuss about October, November variance 13. All right. Question number 1. First four ionization energies for element X are shown in the table. Which ion of X is produced by removing an electron from a filled shell? Okay. This is the first इलेक्ट्रॉन के रिमूवल की एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने की एनर्जी, जब थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा उसकी एनर्जी और फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी एनर्जी। इसका मतलब एलिमेंट एक्स में से एग्जामिनर 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहे हैं, राइट। ये हमारा सबसे पहला था पॉइंट कि 4 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एलिमेंट एक्स। सेकंड, आप नोट करें इन दोनों के दरमियान भी एनर्जी का गैप होगा, यहाँ भी डिफरेंस डिटरमिन करो, यहाँ भी डिफरेंस डिटरमिन करो। तो फर्स्ट और सेकंड इज 1980 minus 577, it's going to be 1430, ठीक है, सॉरी 1403। देन फिर आपके पास है 2960 minus 1980, then it becomes 980, and then 6140, 6190 minus 2960, 3230। इसका मतलब the greatest energy gap exists between third and fourth. So my second point is first 3 electrons are removed from the third shell or outer shell. And the next point is the fourth electron is removed from the filled shell. और अगर वो filled shell होगा तो या तो उसमें 2 electrons होंगे अगर वो K shell है, और अगर वो L shell है तो उसमें 8 electrons होंगे, राइट। तो अगर 4 electrons रिमूव किए एग्जामिनर ने तो ऑब्वियसली बेटा ion is going to be X4 plus, ठीक है। Question number 2, what is a basic assumption of the kinetic theory as applied to an ideal gas? Collision between gas molecules are elastic. That's perfectly all right because perfect collision hota hai, inelastic collision hota hai, hence there is no loss of energy. Okay, so A is going to be the right answer. A sample of the hydrocarbon C6H12 is completely burned in dry oxygen and the product gases are collected as shown. ठीक है, ये P जो है वो water absorb कर रहा है and water has an MR of 18. Be remember that. Similarly, Q जो है वो carbon dioxide absorb कर रहा है. That means Q is basically 44. All right. वो कह रहे हैं MP over MQ. MP का मतलब molecular mass over molecular mass of carbon dioxide. तो रेशो आपके पास बनेगा 18 divided by 44 is going to be 0.41. तो बेटा 0.41 is basically A is the right answer. 5 gram sample of the carbonates of barium, copper, lithium, and magnesium are decomposed to the metal oxide and carbon dioxide. For which compound there the greatest loss in mass? बेटा greatest loss in mass उस जगह पर होगा जहां पर सबसे कम molecular mass होगा, ठीक है। तो जब molecular mass कम होगा तो greater loss in mass होगा।
राइट आंसर इज सी। ये आपके पास लिथियम कार्बोनेट है, आप इसको डिकम्पोज करवा दीजिए लिथियम ऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, लिथियम कार्बोनेट का एमआर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लिथियम कार्बोनेट का एमआर बेटा आपके पास है ओके 73.89। तो मैं यहां से मोल्स निकाल लेता हूँ। 5 डिवाइड बाय 73.89, तो ये आपके पास बेटा मोल्स आ जाएंगे। 5 divided by 73.89 is going to be 0.067676 moles। ठीक है, ये 1 मोल है, ये भी आपके पास 1 मोल है। ओके, तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देख लेते हैं। 0.0676 मल्टीप्लाई कर दीजिए 44 से, विच इज द एमआर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इंटू 44 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2.977 ग्राम। सही, तो सबसे कम मास जो है ना, लॉस इन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो लिथियम कार्बोनेट में आएगा। ठीक है, तो आपने एग्जैक्टली यही प्रोसीजर अडॉप्ट करके सबके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का मास डिटरमिन करना है। जहां मास सबसे कम होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। मैंने इसका शॉर्टकट आपको ये दिया था, greater loss in mass will be is the one which has the lower MR। ठीक है, ये इसका शॉर्टकट है। Question number 5. In this question, you should assume methane behaves as an ideal gas. That's a very important statement. The gas loss can be summarized in the ideal gas equation below. The volume of a sample of methane is measured at temperature 60 degrees Celsius and a pressure of 103 kilopascal. The volume measured is this. What is the mass of the sample of methane given to two significant figures? Okay, हमें PV equals to nRT given है, but हम सब जानते हैं कि हमें यहाँ से मास कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, PV equals to mRT अपॉन mR करेंगे, और हमें क्योंकि यहाँ से मास कैलकुलेट करना है तो हम प्रेशर को पैस्कल में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो 1 किलो पैस्कल इक्वल्स टू 1000 पैस्कल, तो ये हो जाएगा 103,000 इनटू वॉल्यूम ऑलरेडी मीटर क्यूब में, तो इसको कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज कॉपी करें। मास आपको कैलकुलेट करना है, आर की वैल्यू 8.31 होती है, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 60 डिग्री सेल्सियस, उसमें 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 333 केल्विन डिवाइडेड बाय mR ऑफ मीथेन। मीथेन का mR होता है बेटा 16, तो यहां से मास आपके पास कितना आ जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 3.2 ग्राम। तो राइट आंसर इज सी। फिर है बेटा आपके पास butane burner is used to heat water. The MR of butane is 58. Delta HC of butane is given. 250 gram of water is heated from 12 to 100 degrees Celsius. The burner transfers 47% of the heat released from the burning fuel to the water. Assume that the butane undergoes complete combustion.
and none of the water vapor evaporate, what is the minimum mass of butane that must be burned? Okay. Lot of information actually in this question. तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, डेल्टा Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T अप्लाई करेंगे. MC डेल्टा T. Okay, so delta Q equals to MC delta T. We need to apply. Mass of water is 250. Specific heat capacity is 4.18, which is given in the data booklet. Delta T is basically 100 minus 12, so it's going to be 88. तो मैं 88 में लिखता हूँ, मैं इसकी जगह 100 minus 12 कर देता हूँ. It doesn't make any difference by the way. So delta Q आपके पास आ जाएगा 9,250 into 4.18 into 80. 91960 joules. All right. अब जाहिर सी बात है, ये जो आपने एनर्जी डिटरमिन की है ये 47% में थी. तो अगर 47% हीट एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो है 91960 जूल्स. तो अगर 100% होती तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना होता? तो ये हो जाता into 100 डिवाइडेड बाय 47%. तो ये हो जाता आपके पास 195659.57 जूल्स. ठीक है जी. आप जानते हैं एग्जामिनर ने आपको कंबस्शन ऑफ फ्यूल दिया हुआ है which is -2877 किलो जूल्स पर मोल, यानी 1 मोल में आपको इतनी एनर्जी मिल रही है. -2877 किलो जूल्स. सही है गाइस. सो हम इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. ये हो जाएगा आपके पास 195.659 किलो जूल्स. तो मैं अगर 195.659 किलो जूल्स लेता हूं तो बताइए मोल्स कितने हो जाएंगे मेरे पास ब्यूटेन के. सो ब्यूटेन के बेटा मेरे पास मोल्स हो जाएंगे 0.068, यानी मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 2877 0.068 मोल्स. ठीक है जी. एमआर मुझे ब्यूटेन का पता है तो मैं मास कैलकुलेट कर सकता हूं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. सो मुझे मास कैलकुलेट करना है तो मैं जो मोल्स हैं 0.06 से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा एमआर ऑफ ब्यूटेन से which is 58. So it's going to be 3.94 gram. So my right answer is C. Okay. Now the next question is, nitric acid is known to take part in the oxidation of atmospheric sulfur dioxide. One possible reaction is shown. Which row shows the correct changes in the oxidation number of nitrogen and sulfur? Changes in oxidation number of nitrogen and sulfur. So guys, आपको पता है हमने क्लास में भी किया है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है in SO3. नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट in HNO3 is +5. NO में यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है आपके पास +3. ऑलराइट. और HSO4 नेगेटिव में आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट है X -8 +7 +6. ठीक है. तो वो आपसे कह रहे हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन +5 से -3 गया, इसका मतलब -2 हो जाएगा. और ये +4 से +6 जा रहा है, इसका मतलब ये +2 हो जाएगा. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी. A transition metal ion reacts with acidified dichromate 6 ions to form M4+ ions, chromium 3+ ions, and H2O. Which equation correctly represents this equation? Guys, in this sort of equation, you need to balance the charges as well as the atoms on both the side. So yeah, so we have 2 chromium 3+ in all the cases, 7 water molecule in all the cases, 14 hydrogen ion in all the cases, and chromium
डाइक्रोमेट 6 साइंस इन ऑल द केसेस। बट आप जानते हैं कि जब आप डाइक्रोमेट 6 साइंस लेंगे, चले मैं करके दिखा भी देता हूं आपको, ये इक्वेशन आयन इलेक्ट्रॉन रूल के थ्रू आप बैलेंस करेंगे। सही है, आप M2+ को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं और ऑब्वियसली वो M2+ ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाएगा M4+ में, राइट। नंबर ऑफ चार्जेस बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होकर कैंसिल हो जाएं। तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, Cr2O7 2-, ठीक है। 14 हाइड्रोजन आइन ये आ गए, 3M2+ ये आ गया, 2 क्रोमियम 3+ ये आ गया, 7 वाटर मॉलिक्यूल ये आ गया, 3M4+ ये आ गया। तो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। यानी मैंने इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज करके लिखा है। जब मैं मर्ज करके लिखूंगा तो यही बनेगी इक्वेशन सी वाली। सो ये मैंने आयन इलेक्ट्रॉन रूल्स अप्लाई करके दोनों इक्वेशंस को बैलेंस करके मर्ज करके फाइनल इक्वेशन डिटरमिन किए। In this question, you should assume that all gases behaves ideally. Hydrogen and iodine reacts reversibly in the following reaction. The system reaches dynamic equilibrium. System reaches dynamic equilibrium. Delta H की वैल्यू जो है वो -9.5 किलोजूल पर मोल है. Which statement must be true for the Kp of this equilibrium to be constant? भाई Kp and Kc are only temperature dependent. So if Kp is constant, temperature needs to be constant. So D is going to be the right answer. Question number 10. 0.2 mole of sulfur dioxide and 0.2 mole of oxygen are placed in a 1 dm³ sealed container. Okay. And the gases are allowed to reach until equilibrium is established. At equilibrium, 0.1 mole of sulfur dioxide is present in the container. What is the value of Kc? So what we can do is we need to write the equation again. ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है और ये सल्फर डाइऑक्साइड है। इनिशियल अमाउंट क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये 0.2, ये भी 0.2 और ये 0 होगा। इक्विलिब्रियम के ऊपर आपके पास सल्फर ट्राइऑक्साइड का अमाउंट गिवन है विच इज 0.1, राइट। तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ 0.2 मोल है और ये भी 2 मोल है, तो अगर इक्विलिब्रियम पे ये 0.1 है तो यहाँ भी कितना होगा, 0.1 होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं यहां से रिएक्टेड मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूं। इनिशियली 0.2 थे, 0.1 फॉर्म हुए तो बच कितने जाएंगे, 0.1 मोल बच जाएंगे। तो बेटा ये 0.1 मोल मैंने यहाँ लिख दिए। अच्छा, इन दोनों के दरमियान 2:1 का रेशियो है, सही है। ठीक है, ये भी देख लीजिए, SO2 और ऑक्सीजन में 2:1 का रेशियो है। तो अगर यहाँ से 0.1 रिएक्ट हुए हैं तो यहाँ से कितने रिएक्ट होंगे, सॉरी, ये अगर यहाँ से 0.1 रिएक्ट हुए तो ऑब्वियसली यहाँ से 0.5 हो जाएंगे। 0.2 डिवाइड 0.1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 0.05 हो जाएगा बेटा आपके पास, सही है। तो अब देखिए, इनिशियली 0.2 थे, उसमें से 0.05 रिएक्ट हो गए, तो बच कितने जाएंगे, तो 0.2 माइनस आंसर इज गोइंग टू बी 0.15। ये 0.15 मोल्स बच जाएंगे। अब बेटा इनको ये कंसंट्रेशन ही है, बिकॉज इनको हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कंसंट्रेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। डायरेक्ट वैल्यूज को प्लग इन कर देते हैं फॉर्मूले में। ये 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 मोल्स सल्फर डाइऑक्साइड है, 0.1 का सल्फर डाइऑक्साइड का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 मोल्स है, 0.15 एज इट इज। तो Kc की वैल्यू यहाँ से बेटा मेरे पास कितनी आ जाएगी, 6.67 into 10 to the power
-1 और ये वैल्यू सिर्फ डी में है, which is why D is going to be the right answer. I hope it makes sense to you. Two reactions are shown. First reaction, second reaction. In reaction 1, a finely powdered iron catalyst is used. In reaction 2, vaporized tetrachloromethane catalyst in ultraviolet light is used. ठीक है. Which statement about the catalyst use is correct? Catalyst use is correct. देखिए, both reaction 1 and reaction 2 use heterogeneous catalyst. नहीं, wrong, क्योंकि यहाँ तो हैपेस प्रोसेस में तो हेटेरोजीनियस है, लेकिन यहाँ पर होमोजीनियस, यहाँ पर हेटेरोजीनियस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गैसेस हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, और कैटलिस्ट जो है ना वो गैस फॉर्म में इन अल्ट्रावायलेट लाइट, तो होमोजीनियस हो गया ना, राइट, इसलिए ये गलत हो गया. देख रहे हैं, ये कह रहा है वेपराइज्ड टेट्राक्लोरोमीथेन, इसका मतलब कैटलिस्ट क्या होगा, गैस, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स भी क्या है, गैस, इसका मतलब ये हेटेरोजीनियस नहीं है, ये गलत हो गया, ये ठीक है, ये हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट है, तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा मेरा. बोथ रिएक्शन 1 एंड रिएक्शन 2 यूज होमोजेनियस कैटलिस्ट, रॉन्ग, क्योंकि रिएक्शन 1 जो है वो आपका हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है. रिएक्शन 1 uses heterogeneous catalyst and reaction 2 uses homogeneous catalyst. That's the right answer. Sodium and sulfur are burned separately in oxygen. Each reaction has a distinctive colored flames. Which row is correct? Sodium burned with yellowish orange flame and sulfur burned with a blue flame. The right answer is going to be C. फ्लेम कलर्स आपको बताए हमें, आपको याद होने चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है. Question number 13. X and Y are elements in period 3 of the periodic table. The oxide of X is solid at room temperature and pressure. The solid has a giant structure. पहली तो बात ये, solid at room temperature pressure और फिर giant structure है. तो भाई giant structure सोडियम ऑक्साइड का भी होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी होता है, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का भी होता है, ठीक है. इन सब के जाइंट स्ट्रक्चर हैं, ये सब सॉलिड भी हैं एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. बाय द वे P4O10 भी सॉलिड होता है, ठीक है. द क्लोराइड ऑफ X डज नॉट रिएक्ट विद वाटर. भाई इसका जो क्लोराइड है ना, AlCl3, SiCl4 एंड PCl5, ये तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि does not react with water कह रहे हैं. तो does not react with water का मतलब सोडियम क्लोराइड हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है, क्योंकि वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, रिएक्ट नहीं होते. नेक्स्ट, आर्गॉन इज द ओनली एलिमेंट इन पीरियड 3 विद अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन Y. अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट याद हो, आर्गॉन से कम जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्लोरीन का होता है, सही है, तो याद रखिएगा, क्लोरीन has a slightly higher melting point than chlorine. तो इसका मतलब ये हुआ कि X जो है वो आपके पास सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है. सल्फर, ये क्यों गलत हो गया, इसलिए क्योंकि सल्फर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होता है फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन में, ठीक है. उसने कहा है आर्गन इज द ओनली एलिमेंट इन पीरियड 3 विद अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन Y, ठीक है. Which row describes the structure and bonding of SiO2 and SiCl4? आप जानते हैं इसका स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर होता है, अच्छा, बॉन्डिंग कोवलेंट होती है, स्ट्रक्चर जाइंट होता है. SiCl4 में बॉन्डिंग कोवलेंट होती है, स्ट्रक्चर सिंपल होता है. राइट आंसर इज बी. फिर वो कह रहे हैं a sample of anhydrous calcium nitrate is placed in a test tube and heated in a roaring Bunsen flame until it is decomposed. तो अगर कैल्शियम नाइट्रेट को डिकम्पोज करोगे तो it will turn to calcium oxide
nitrogen dioxide and oxygen. ठीक है. The description of the gas in the test tube is then noted. Okay. उसके बाद वो कह रहे हैं a glowing splint is then put into the test tube and any changes are noted. Which observations are correct? तो अगर आप burning splinter को introduce कर रहे हैं तो splinter relight से glowing splint हो जाएगा. For oxygen इसका dark brown color मिलेगा आपको और ये बेटा white solid मिलेगा आपको. ठीक है. Description of the gas in the test tube. तो description of the gas in the test tube क्या होगी? ब्राउन गैस होगी क्योंकि वो नजर आ रही होगी आपको. रिजल्ट ऑफ ग्लोइंग स्प्लिंटर क्या होगा? स्प्लिंटर रीलाइट्स. तो ये आ जाएगा. तो राइट आंसर इज बी. ठीक है. तो ये भी लिख लीजिए कि डार्क ब्राउन कलर होता है इसका और ये रीलाइट्स अ ग्लोइंग स्प्लिंट होता है. Sixteen. Which row correctly describes the properties of the halogens as group 17 is descended from chlorine to iodine? When properties of group 7 halogen is descended, तो volatility decrease होती है because van der Waals forces increase होती हैं. Oxidizing agent की जो strength है वो decrease होती है, which is why A is going to be the right answer. ठीक है. Question number 17. Reaction 1. Chlorine reacts with cold aqueous NaOH to form solution Z. The solution Z is basically sodium chlorate 1. Solution Z is heated, forms ClO3 negative and Cl minus. Which equation represents reaction 1 and 2? आपको याद होगा मैंने इक्वेशन कोल्ड KMnO4 की करवाई थी आपको. सॉरी कोल्ड NaOH की. वो ये थी. राइट. और हॉट कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन के लिए ये थी 6OH negative arrow 5Cl negative plus ClO3 negative plus 3H2O. So let's find out which equation is the right one. Oh, okay. Just hold on a second. अगर मैं ये जो solution है आपके पास ClO negative इसको हीट करूंगा तो ये ClO3 नेगेटिव में कन्वर्ट होगा और ये Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होगा. अब जाहिर सी बात है इसको बैलेंस कर लेते हैं. तो बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 3 लगाता हूँ, मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ. ठीक है. तो आपने ये दो इक्वेशंस देखनी है कि ये दो इक्वेशंस कहाँ पर हैं. तो ये इक्वेशन यहाँ पर है, ये यहाँ पर है. तो डी इज द राइट आंसर. Which statement explain the observation that magnesium hydroxide dissolves in aqueous ammonium chloride? तो आप जानते हैं magnesium hydroxide एक alkali है. So can react with acid. उसके बाद अमोनियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं. तो आप जानते हैं कि अमोनियम क्लोराइड conjugate acid होता है, whereas sodium chloride has a neutral solution of pH7. तो अगर वो न्यूट्रल सॉल्यूशन की वजह से रिएक्शन कर रहा है लेकिन अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन कर रहा है बिकॉज अमोनियम क्लोराइड इज अ कॉन्जुगेट एसिड एंड ऑल कॉन्जुगेट एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स. All conjugate acids are proton donors, which is why D is the right answer. Question number 19. Transition elements and the compounds are widely used as catalyst. What is the identity and what is the oxidation number? Identity and the oxidation number of the element present in the catalyst used in the contact process. Element जो है वो vanadium होता है और ऑक्सीडेशन नंबर वेनेडियम का क्या होगा बेटा? वेनेडियम 5 ऑक्साइड कहते हैं, इसका मतलब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी. आप चाहें तो आप कैलकुलेट करके भी दिखा सकते हैं. अगर नाम आपको याद नहीं है, ये हो जाएगा 2x -10. -10 का मतलब -2 × 5 = 0, देन x = +5. आप ऐसे डिटरमिन भी कर सकते हैं. वैसे नाम उसका होता है वेनेडियम 5 ऑक्साइड.
ठीक है. Next, what is true of every nucleophile? Every nucleophile has a lone pair. Every nucleophile donate its lone pair, right? तो right answer is B, क्योंकि हम जब भी कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या न्यूक्लियोफाइल को इन्वॉल्व करते हैं उस नेगेटिव चार्ज के ऊपर लोन पेयर दिखाते हैं, इसलिए लोन पेयर को प्रायोरिटी देंगे, which is why B is going to be the right answer. 21. X has the molecular formula C5H12O. Okay, X है उसका molecular formula ये है. X is a branch chain carbon skeleton and is a secondary alcohol functional group. How many structural isomers fit in this description of X? Okay. ब्रांच कार्बन स्केलेटन है, तो कार्बन स्केलेटन को तो छोड़ दीजिए, हम वैसे इसको कर लेते हैं, और सेकेंडरी अल्कोहल भी है, तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए ये हो जाएगा आपके पास CH2 CH3 1 2 3 4 5. ओके, हम इस तरह से भी तो बना सकते हैं इसको, CH3 C CH3 CH3 3 CHOH and then CH3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 6. ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज 6 कार्बन एटम है इसमें. ठीक है, अच्छा हम ये भी तो बना सकते हैं, अगर मैं CH3 यहाँ शिफ्ट कर दूं, OH यहाँ पर ला दूं, तो क्या ये बनेगा? ये नहीं बनेगा. इट इज नॉट सेकेंडरी अल्कोहल, इट इज टर्शियरी एक्चुअली, तो ये भी गलत हो जाएगा. ठीक है, तो आई बिलीव दैट इज द ओनली कंपाउंड जो कि हम फॉर्म कर सकते हैं, विच इज वाई ए इज द राइट आंसर. ठीक है, इसके अलावा कुछ बन नहीं सकता. Question number 22. A new jet fuel has been produced that is a mixture of different structural isomers of compound Q. फिर वो कह रहे हैं आपसे, ये है आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है, और ये है आपके पास इसका स्ट्रक्चर मिडिल में, राइट. वो कह रहे हैं विच स्केलेटल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ Q. स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या होगा? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट 9 कार्बन एटम्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन एटम्स हैं, ये गलत हो गया. ठीक है, लेस कार्बन एटम्स हैं यहाँ इन स्ट्रेट चेन. आप ये भी कह सकते हैं, देखो टोटल 14 कार्बन एटम्स हैं, और यहाँ टोटल 13 कार्बन एटम्स हैं. तो जब कार्बन एटम्स डिफरेंट हो गए तो जाहिर सी बात है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो नहीं बनेगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर तो नहीं बनेगा. ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया. यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ 13 कार्बन एटम्स हैं, तो यहाँ कार्बन एटम्स तो सही हो गए. ठीक है, हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं. 3 + 3 6 7 8 9 10 10 + 3 13 13 and 1 14 + 3 17 18 19 20 23 23 26 29 30. 3 + 2 5 + 1 6 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. यहाँ पर हाइड्रोजन्स कम है, ठीक है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा बेटा। यहाँ टोटल हाइड्रोजन्स 30 हैं आई बिलीव। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, आप देखें ये पूरा का पूरा सेगमेंट एज इट इज है। ओके, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 कार्बन एटम्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 so 14 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ भी 14 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं। 3 + 3 30 होना चाहिए। 3 + 3 6, 6 + 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो इसमें बेटा 14 कार्बन और 30 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों सेम हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर है, व्हिच इज व्हाई सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट। सही है। Question number 23. The conversion of propene to propane-to-ol can be carried out in two stages represented by the equations shown. ठीक है बेटा, ये आपके पास एल्कीन में रिएक्शन हुआ है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ये रहा। ये आपके पास अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड से आयोडीन चला गया, OH आ गया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये होगा, तो राइट आंसर इज बी। ठीक है बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 24. An organic molecule W contains 3 carbon atoms. It requires 4.5 molecules of oxygen for complete combustion. What could W be? बेटा ट्रायल एंड एरर की बेस पे आपने सारी की सारी इक्वेशंस को बैलेंस करना है। जहां पर आंसर आपके पास 4.5 आएगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हम करके दिखा देते हैं आपको। C3H8 + O2 एरो 3CO2 + 4H2O, तो ये यहाँ 5 आ जाएगा। ये गलत हो गया क्योंकि वो 4.5 कह रहे हैं। प्रोपेनोइक एसिड है आपके पास CH3 CH2 COOH, आप उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे। ओके, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 3CO2 में प्लस 3H2O में, तो ये जाएगा 9। 9 का मतलब होगा 9 और 2 ऑलरेडी हैं, तो 7.5 7 3.5 आ जाएगा। तो वो तो कह रहे हैं आपसे 4.5 होना चाहिए, गलत। प्रोपेनॉन है आपके पास CH3 COCH3, आप इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा 3CO2 में प्लस 3H2O में। तो यहाँ ऑलरेडी एक ऑक्सीजन है आपके पास, यहाँ 6 + 3 9 है, तो यहाँ पर 4 करेंगे आप, तो ये भी गलत हो जाएगा। द राइट आंसर इज डी। फिर वो कह रहे हैं आपसे कंपाउंड J is reacted with an excess of hot concentrated solution of sodium hydroxide in ethanol. Only one of the product is X. Guys, when hot concentrated solution of sodium hydroxide is in ethanol is used using this alkyl halide, इसका मतलब elimination reaction takes place. Elimination reaction occur to give alkene. Or elimination always takes place from the hydrogen of beta carbon atom, right?
ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट देखिए, जो आपने जहन में रख के आंसर तक पहुंचना है कि एलिमिनेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम द हाइड्रोजन ऑफ बीटा कार्बन एटम। और हमने आपको क्लास में समझाया कि बीटा कार्बन एटम किसे कहते हैं। हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच होता है उसका जो नेबर कार्बन होता है वो बीटा कार्बन एटम होता है। वो बीटा सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। सेम है तो एक ही एल्कीन बनेगी, डिफरेंट है तो डिफरेंट एल्कीन्स बनेगी, राइट। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास। मैं आपको बात समझाने के लिए और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसको एक्चुअली दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए क्वेश्चन के आंसर को रिस्पॉन्ड करने में, ठीक है। ओके, सबसे पहला काम, हम यहाँ से जो डबल बॉन्ड्स हैं उनको रिमूव कर देते हैं, ठीक है जनाब। ब्रोमीन को भी रिमूव कर देते हैं, ब्रोमीन वाले बॉन्ड को भी रिमूव कर देते हैं, सीएल को भी रिमूव कर देते हैं, बीआर को भी रिमूव कर देते हैं। चलिए अच्छा, आप सीएल बीआर को रखते हैं, ये रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ये हाइड्रोजन है आपके पास, तो ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएंगे और ये बॉन्ड इनसाइड द रिंग चला जाएगा, वो ये आ गया, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन है आपके पास, तो यहां से क्लोरीन और यहां से हाइड्रोजन मिलकर बना लेंगे HCl और ये बॉन्ड इनटू द रिंग शिफ्ट हो जाएगा, वो ये आ गया, ठीक है। देन फिर ये हाइड्रोजन और ये Br दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, HBr, और ये बॉन्ड इनटू द रिंग चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और यहां पर डबल बॉन्ड तो ऑलरेडी था, वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। अब दोबारा से देख लीजिए, हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच होता है उसकी जो नेबर कार्बन है वो बीटा कार्बन, तो एलिमिनेशन मैंने इस कार्बन एटम से कराई। ये बीटा कार्बन एटम थी तो एलिमिनेशन मैंने इस कार्बन एटम से कराई। ये बीटा कार्बन एटम थी तो एलिमिनेशन मैंने इस कार्बन एटम से कराई, ठीक है। Sodium reacts with 1 mole of compound Y to produce 1 mole of H2. 1 mole of H2 means compound Y contain either 2 COOH, either 2 OH or 1 COOH and 1 OH. तो कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं। ओनली 1 OH इसलिए रॉन्ग हो जाएगा, ओनली 1 OH इसलिए रॉन्ग हो जाएगा, ओनली 1 COOH इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज डी बिकॉज इट हैज ओनली 1 COOH and 1 OH, बिकॉज एक हाइड्रोजन यहां से और एक हाइड्रोजन यहां से, these two hydrogens combine together to give 1 mole of hydrogen gas, 1 mole of hydrogen gas. उसके बाद next, which compound shows optical isomerism and give a positive test with alkaline aquacidine? Optical isomerism gives positive test with alkaline aquacidine. तो optical isomerism का मतलब chiral कार्बन होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कहां पर कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन ए में है, कायरल कार्बन सी में है, दैट्स इट। तो या तो ए आंसर या फिर सी। फिर वो कह रहे हैं एल्कलाइन एक्वासाइडिन, तो एल्कलाइन एक्वासाइडिन के लिए जरूरी है कि आपके पास CH3 CHOH ग्रुप हो या फिर CH3 CO ग्रुप हो। अब इन दोनों में से कौन सा ग्रुप अवेलेबल है, तो CH3 CO ग्रुप अवेलेबल है, ये लिखा हुआ CH3 CO ग्रुप, तो इसका मतलब यहाँ से हाइड्रोकॉन्कॉर्ड पॉजिटिव टेस्ट आ जाएगा, यानी ये कंडीशन फॉलो हो रही है, which is why A is going to be the right answer, ठीक है। ये रहा CH3 CO ग्रुप, ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। आई होप यू कैन कोरिलेट दीज कलर्स। Question number 28. Ethane dioic acid is reduced using an excess of lithium aluminum hydride.
What is the organic product of this reaction? आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास टू स्टेप रिडक्शन होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड प्राइमरी अल्कोहल इज इथेन 1,2 डायोल। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये COOH था आपके पास, ये भी COOH था आपके पास, आपने इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाया, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। दिस इज बेसिकली इथेन 1,2 डायोल। सही है। 29, the diester shown can be hydrolyzed by heating in excess of aqueous sodium hydroxide। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में किसी भी एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हो, दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलती हैं, एक सॉल्ट ऑफ एसिड मिलता है आपको और दूसरा अल्कोहल मिलता है, अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर, राइट? दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास। सो अगर मैं बॉन्ड को ब्रेक करना चाहूं, मैं यहां से भी ब्रेक कर सकता हूं बॉन्ड को, और मैं यहां से भी ब्रेक कर सकता हूं। सो ऑब्वियसली दिस ऑक्सीजन विल गेट हाइड्रोजन ऑफ वाटर एंड विल टर्न टू OH। तो OH यहां पर भी है और OH यहां पर भी है, तो या तो आंसर ए है या फिर आंसर सी है। ठीक है, ये भी OH, ये भी OH, ये भी OH, ये भी OH, तो या तो आंसर ए है या फिर आंसर सी है। But when this CO will get OH of water, it will turn to obviously methanoic acid. When this CO will get OH of water, it will turn to ethanoic acid. As you can see, this compound has 2 carbon, this compound has 1 carbon. तो यहां से आपको क्या मिलेगा? मेथनोइक एसिड, और यहां से आपको क्या मिल रहा होगा? इथेनोइक एसिड। और क्योंकि अब मीडियम एल्कलाइन है इसलिए ऑब्वियसली सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक आपको मिलेगा सोडियम मिथानोएट और दूसरा आपको मिलेगा सोडियम इथानोएट। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। ठीक है बेटे। Now the next question is question number 30. J is a branch chain alcohol. Remember, J is a branch chain alcohol. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। Heating under reflux with an excess of dichromate 6 ions until no further reaction occurs, organic compound K is formed in a good yield. The infrared spectrum of K is shown. Okay, तो जो K है that shows कि आपके पास कार्बोनाइल की पीक है which usually occurs in 400 centimeter inverse, और ये CH की पीक है which is actually 3000 centimeter inverse. So option देखते हैं, what are the structures and branch chain alcohols J and compound K? Structure of the branch chain alcohol, structure and the branch chain alcohol J and a compound K. Okay, option D is wrong because no COOH की peak exist. No COOH peak is exist in his spectrum. सही है। उसके बाद B is also wrong because J is not branching. Substituent तो है, ब्रांच नहीं है। ठीक है जनाब। अब देखो, C is going to be the right answer. Because ये ब्रांच चेन है और ये कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके। ठीक है, व्हाई नॉट ए? ए इसलिए गलत है बिकॉज जब आप एक्सेस डाइक्रोमेट 6 आयंस रिएक्ट करवाओगे हीट अंडर रिफ्लक्स, तो वो एल्डिहाइड नहीं बनाएगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड बताएगा। अंडर रिफ्लक्स in excess condition,
Carboxylic acid is formed, not aldehyde. ठीक है. Question number 31. Question number 31 says use of the data booklet may be appropriate for some question. वो कह रहे हैं which ion contain one or more unpaired electrons. One or more unpaired electrons. So copper ion is the right answer because उसमें 3d9 होगा, 3d9 में एक unpaired होगा. Similarly Mn3 plus है तो Mn3 plus में 3d3 होगा, उसमें भी एक unpaired electron होगा. Vanadium 3 plus is also right because उसमें भी 3d2 होगा, तो उसका भी आंसर ठीक होगा, उसमें भी एक unpaired होगा. तो A is going to be the right answer. I mean use spin configuration. मुझे याद है चीजें इसलिए मैंने दिमाग में सॉल्व करके आंसर ले लिया, बट आप स्पिन कॉन्फ़िगरेशन करके तमाम आइंस की डिटरमिन कर सकते हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो तीनों में मिल जाएंगे आपको इंशाल्लाह ताला. Which molecule and ions have a bond angle of 120? BF3 has a bond angle of 120. CH3 टेट्राहीड्रा ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, 107 डिग्री एंगल होता है. तो ये पहला सही है, दूसरा गलत है. राइट आंसर इज डेल्टा. Question number 33, which statement are correct for all exothermic reaction? All exothermic reactions. तो exothermic reactions के लिए delta H की वैल्यू नेगेटिव होती है. सही है, ये बात बिल्कुल ठीक है. On the pathway diagram, the products are shown lower than the reactant. That's also right because energy of product is less than that of the reactant. This reaction will occur without heating. No, at times heating is required. तो ये गलत हो जाता है. Right answer is B. ठीक है, right answer is B. Question number 34. The factors affecting the rate of reaction between aqueous sodium thiosulfate and hydrochloric acid can be investigated. The ionic equation for the reaction is shown. ये equation आ गई. Which of the following can be used to investigate the rate of reaction? बेटा used to investigate the rate of reaction. तो change in mass के through आप जानते हैं, आपने O level chemistry में पढ़ा था, decrease in mass of content को use करके मैं rate of reaction को investigate करता हूँ. Precipitate form अगर हो जाए तो भी मैं रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन कर सकता हूं. इसकी वजह यह है कि जब यहां पर सल्फर बनेगा, इसके प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इन्वेस्टिगेट हो जाएगा. इसके अलावा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के थ्रू भी हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन कर सकते हैं. इसको कहते हैं कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशन. सो ए इज नो ओ माय बैड. वैसे तो चेंज इन मास के थ्रू निकलता है, लेकिन फॉर दिस रिएक्शन चेंज इन मास पॉसिबल नहीं है. ठीक है, चेंज इन मास नहीं है बिकॉज ऑल ऑफ देम आर एक्वस. सो कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, बट मास चेंज नहीं हो सकता. राइट, तो फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा. राइट आंसर इज सी, क्योंकि सेकंड और थर्ड बिल्कुल ठीक है. यहां लिख देते हैं फॉर दिस रिएक्शन concentration can be changed, not mass, क्योंकि यहां हमने कोई मास लिया नहीं है, सारे एक्वस मीडियम में. ठीक है. Which reaction route can be used to make pure sample of barium sulfate? तो बेटा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और हमने इसका आंसर पहले भी बताया था कि ये तीनों ऑप्शंस बिल्कुल ठीक हैं. राइट आंसर इज ए. आप देख लीजिए, बेरियम मेटल को आप हीट करेंगे ऑक्सीजन से तो बेरियम ऑक्साइड, HCl से रिएक्शन करेगा बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करें बेरियम सल्फेट, फिल्टर करें, वॉश करें, ड्राई करें, बन जाएगा. बेरियम नाइट्रेट से बनेगा बेरियम ऑक्साइड, वाटर के साथ ट्रीट करवाएंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेंगे बेरियम सल्फेट, फिल्टर वॉश ड्राई करेंगे तब भी बन जाएगा. ये बेरियम नाइट्रेट बनेगा HNO3 से रिएक्शन करके, H2SO4 से रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट, फिल्टर वॉश ड्राई करेंगे तो तब भी बन जाएगा. ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ था, पहले भी सॉल्व करवाया हमने. Which properties increases from magnesium to barium? Ionic radius increase होता है down the trend. That's right. डाउन द ग्रुप स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, ये भी सही है. सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड जो है वो भी इंक्रीज होती है, व्हिच मींस ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. 37, 2-methyl propene can react in more than one way with chlorine. One of the reaction follows the pathway. ठीक है, ये इक्वेशन आ गई. Which statement about this mechanism is correct?
ओके सबसे पहली बात वो कह रहे हैं द इंटरमीडिएट हैज ऑल द कार्बन एटम इन द सेम प्लेन। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज दिस कार्बन is sp2 hybridized. If this carbon is sp2 hybridized, इसका मतलब इसकी प्लेनर ज्योमेट्री है। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? प्लेनर। तो पहला वाला स्टेटमेंट ठीक है। There is an electrophilic attack on the double bond. Oh yes, because all alkenes undergoes electrophilic addition reaction. All alkenes undergoes electrophilic addition, meaning पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, बाद में न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। तो सेकंड स्टेप भी ठीक हो जाएगा आपका। इट इज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, नॉट एट ऑल, बिकॉज एल्कीन में फ्री रेडिकल नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। 38 the halogenalkanes listed below all react with NaOH. Which reaction proceeds mainly by the SN1 mechanism? तो SN1 mechanism आप जानते हैं प्योरली टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के थ्रू भी होते हैं, और इसके अलावा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड भी होते हैं। सही है। सो आपने ये गलत हो गया, बिकॉज ये प्रोपेन मेनली तो बेटा टर्शियरी ही होता है। 2 मिथाइल प्रोपेन इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये 2 आयोडो है, ये 2 मिथाइल हो गया, तो ये टर्शियल कार्बोलाइड हो गया, SN1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट ठीक। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4, 2 ब्रोमो और 2 मिथाइल, ये 2 मिथाइल, तो ये भी बेटा टर्शियल कार्बोलाइड हो गया आपका, क्योंकि मेनली टर्शियल कार्बोलाइड में होते हैं। सेकेंडरी में हम उस वक्त लेते हैं जब एग्जामिनर हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं। यहाँ कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि सेकेंडरी अंडरगोज, इसलिए मैंने फर्स्ट को क्रॉस कर दिया। ठीक है, which is why I believe C is the right answer. 39 3-oxobutonic acid can be synthesized in 2-step process. आपको एक तो कीटोन मिल रहा है यहाँ से, और दूसरा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल होगा, जब भी वो ऑक्सीडाइज होकर बेटा कीटोन में कन्वर्ट हुआ होगा। एक बात। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल था और वो ऑक्सीडाइज होकर सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ। तो मेरा पॉइंट सिंपल सा इतना है कि आपके पास X से सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड भी बन सकता है, क्योंकि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड विल टर्न टू सेकेंडरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल विल टर्न टू कीटोन। ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि ये भी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ये भी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ये ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये एज इट इज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? 2 और 3 तो करेक्ट हो गए। ठीक है, फर्स्ट को भी देख लेते हैं। अगर मैं इस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर दूं तो ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको ट्रीट करवा दूं वाटर के साथ, स्टीम के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3OH CH2COOH, और अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करा दूं K2Cr7 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट में। तो ये भी ठीक है बेटा। ठीक है, तो राइट आंसर इज A। Question number 40. Ethanol reacts with HCN in the presence of KCN
So ethanol is an aldehyde, always reaction via HCN using KCN as a catalyst. Which change in bonding occur during the reaction? Carbon-carbon bond is formed. That's right, because carbon और cyanide के दरमियान bond बनता है, आप जानते हैं. Carbon hydrogen bond is broken. Carbon hydrogen bond जो है ना वो break होता है या नहीं ये देखना है आपने. तो अगर आपको याद है तो आपको पता होगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है, बिल्कुल ब्रेक होता है. कैसे ब्रेक होता है? ये जो HCN का बॉन्ड है इसमें कार्बन हाइड्रोजन ब्रेक हो रहा होता है ना, सो ये आपको H प्लस और CN माइनस मिल रहा होता है. तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है. दिस बॉन्ड इज फॉर्म, can't break. इसलिए ये ऑप्शन गलत, and therefore right answer is B. Thank you very much guys.